Namaste friends, welcome all of you. Please take deep breathing and after that do Om chanting 3 times. ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Now we will start yoga, and in yoga included more things: asanas, pranayam, pratyahar, dharana, dhyana, or samadhi. So now we are practicing about pranayam and dhyan meditation with pratyahar. So please do inhale deeply, and after that is do Kapalbhati pranayam. This is the first and basic pranayam. So please do any meditative posture. In summer, please avoid Bhastrika pranayam. And Kapalbhati pranayam is very common pranayam. You can do this practice in any weather, any season, but please take a gap 4 hours in your meal. So after 4 hours of meal, please do all pranayams and yoga practices. So first is Kapalbhati. If you are suffering with back pain, severe cardiac problem, in that case, please do very slowly, or you can do gently. If you are a beginner, then do very slowly and 30 stroke in 1 round and do 3 rounds. Hands are in Jnana Mudra like this on your knees. Just do gently 30 strokes in 1 round. After 1 round, please take 2 to 3 long and deep breathing for relaxation.
Please do again Kapalbhati. Actively exhale and passively inhale. After 30 stroke, please do 2 to 3 long and deep breathing. If your lungs and your heart is weak, in that case, please avoid forcefully pranayama practices. After Kapalbhati, please do Bahya Kumbha Pranayam. And during the pranayam, please think about pranayam philosophy. Bhu Riti Prana. Bhu Riti Prana, प्राणों का आधार वो ईश्वर है और भू नाम भी प्राणों का है। इस भाव के साथ बाह्य कुंभक प्राणायाम करेंगे। प्लीज डू बाह्य कुंभक प्राणायाम gently for 3 times. You can move your hands like this on your knees and exhale in one stroke. Exhale or breathe, and after that hold for few seconds, not for more time, and focus on breathing. That outside, focus on mantras. Inhale slowly. During the pranayama practices, please take vegetarian food, sattvic ahar. Bahya Kumbhak pranayam is basic pranayam for yoga sadhakas. It's mentioned in Yoga Darshan, that written by Maharshi Patanjali. Please do again. Please do more time. 2 times. Inhale slowly and exhale in one time, like vomit through both nostrils. Please take long and deep breathing. Please do all pranayam according to your capacity. For beginners, only 3 rounds of all pranayams. In between 2 pranayams, please take 2 to 3 long and deep breathing.
avoid forcefully, do gently. Now please do Ujjayi Pranayam. Ujjayi Pranayam is very beneficial, very helpful for thyroid, good for respiratory system, and helpful for removing the cough and cold. Please inhale with sinking your throat, and after then exhale only through left nostril. Please exhale through left nostril only. Again. And third time, please do in between 2 rounds. Please take long and deep breathing. Now relax, please. After Ujjayi Pranayam, please do Anulom Vilom. Anulom Vilom Pranayam is good for all. Very good, very beneficial for heart, respiratory system, immune system, and good for all senses, for skin, and in case of allergy, some allergies. So please do gently Anulom Vilom. Please take Nasikagri Mudra. So first and second finger is put on bottom of thumb, and two ring finger and little finger are on left nostril. Left hand is in Jnana Mudra only. Inhale through left nostril in starting, and after then rotate more time. Inhale, exhale, inhale, exhale like this, and please focus on breathing. Please inhale through left nostril, exhale through right. Please do very slowly.
Just focus on breathing. You can do this practice 5 to 10 minutes. Inhale slowly, exhale slowly. In 24 hours, we can do this practice 3 to 4 times. We are practicing Vedic techniques in pranayama and yoga. Inhale through right nostril, exhale through left side. Just do continue. आवात वाहि भेषजम विवात वाहि यद्रपः त्वं हि विश्व भेषजो देवानां दूत ईयसे। जो श्वास ले रहे हैं वो भेषज है, परम औषध है। जो श्वास छोड़ रहे हैं वो अंदर के विकारों को बाहर फेंक रहा है। त्वं हि विश्व भेषजो देवानां दूत ईयसे। हे श्वास प्रश्वास, हे प्राण, हे अश्विनों, आप समस्त विश्व के भेषज हो, वैद्य हो, औषध हो। आप ही समस्त देवताओं के दूत हो, इनमें शक्ति का संचार करते हो। देवता अर्थात समस्त इंद्रियों में आप द्वारा ही शक्ति का संचरण है। भारत में अनेक तपस्वी लोग केवल प्राण का वायु का ग्रहण करते हुए लंबे समय तक जीने का इतिहास बना चुके हैं। त्वं हि विश्व भेषजो देवानां दूत ईयसे। अपने प्राणों पर ध्यान रखें। प्लीज फोकस ऑन ब्रीदिंग। There are many tapasvi gana, many yoga sadhakas in India. They are living without any food on base of prana, base of breathing, base of pranayama. But we are very simple practitioners. So please learn slowly, inhale and focus on breathing. Please do continue Anulom Vilom Pranayama. So Anulom Vilom Pranayama is very helpful for good meditation.
और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। After Anulom-Vilom, although this pranayama is not mentioned in Yoga Darshan, but this is very helpful. This is a part of Nadi Sodhan pranayama. Nadi Sodhan is a part of Ayurveda, of Hatha Yoga. In Vedic philosophy, Yoga Darshan mentioned there Bahya Kumbha, Abhyantar Kumbha, Vishakshepi, Stambha Vritti. So in during practice of pranayams, please focus on Om Bhu, Om Bhuvaha, Om Swaha, Om Maha, Om Janaha, Om Tapaha, Om Satyam. After Anulom-Vilom, in summer, we can do Sitli Pranayam. Sitli Pranayam is good for our any high blood pressure problems and good for skin related problems. So शीतली प्राणायाम से हम गर्मियों में ठंडक अनुभव कर सकते हैं. Please avoid शीतली प्राणायाम in winter, in cold, in snow, because शीतली प्राणायाम provide us cooling, very cooling. So please do शीतली प्राणायाम. Make your tongue like a pipe shape and inhale slowly. After then exhale through both nostrils. Please do gently शीतली pranayam. And during the practice the pranayams, if you tired, in that case, relax for some time, and you can do these practices on chair, on bed also, but very good for on floor. In case of if you are not able to do or to sit on floor, then please do on chair and another. देवसुता प्रश्नो अस्नुर्बाहुभ्याम पोषणो हस्ता. तो जो कुछ प्राण हम लेते हैं और जो प्राण छोड़ते हैं, उन सबको आपस में मिलाने की कोशिश करें, जैसे उज्जैन प्राणायाम में करते हैं एक घर्षण के साथ. और योग की साधना प्राण की साधना पर अवलंबित है. यदि हम प्राणायाम को ठीक से नहीं समझेंगे तो योग की गहराई में नहीं जा सकते. Actually,
If you are suffering with back pain, then avoid this practice. And another also very little exercise are very beneficial. And chin and touch your head on floor. Like this. And some little exercise like Gomukhasana. So left knee is on floor and right knee on left knee. So right hand is here upside and give your fingers. Now please take normal breathing. Exhale and slowly come back. Now please change your leg in one line, both knees. If left leg is out here, that left hand is backside like this. In this week, we are practicing some Vedic techniques, not all, because मैं नमन करता हूँ उन समस्त महर्षियों को, ऋषियों को, मुनियों को और उन सभी संस्कृत के वेदों के विद्वान नवीन महानुभावों को जो भारत की भूमि पर जन्मे और आज भी काम करते हैं, और बहुत सारे ऋषि मुनि अनेकों संत गुफाओं में सच्ची साधना में तल्लीन है, उन सबको हम नमन करते हैं। हम किंचित विद्या को आधार बनाकर सांसारिक जीवन को जीते हुए कुछ छोटी छोटी सी प्राणायाम, ध्यान और योग संबंधित विधाओं से अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, सुख, शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। So now please do Brahmari pranayam with Sambhavi mudra. सारा संसार भाग दौड़ में है, सो लेफ्ट हैंड को आप इधर रखें, राइट को इस तरह से। अपने आप को संसार के समस्त झंझावातों से बचाने के लिए योग की शरण अत्यंत उपादेय है। सो हम योग को समझें। बहिरंग योग को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है और यह अत्यंत ही प्रसन्नता की बात है कि आंतरिक अर्थात गुह्य विद्या रहस्य के इस योग को जानने के लिए लाखों करोड़ों लोग लालायित हैं। हम सभी साधारण अभ्यासी हैं। So now please do Brahmari with Sambhavi mudra. Please think about prana. Please think about universal power. Inhale deeply and
Do hum sound, black as like black bee. Inhale. It's called Bhramari with Sambhavi Mudra. हमने कल तक बहुत सारी बातें की. In previous sessions, we were doing more things like प्रत्याहार, प्राणायाम, मंत्रास. कैसे हम अपने मन को बाहर से भीतर की ओर निरुद्ध कर सकते हैं, चित्त को कैसे निरुद्ध करें. तो उसके बहुत छोटे छोटे से हमने प्रयत्न किए. हम अभ्यास निरंतर करें, लंबे समय तक करें. इस अभ्यास में कुछ दिन, माह और वर्ष नहीं, जन्म लग सकते हैं. लेकिन यदि अभ्यास सही दिशा में है, मन के भाव पवित्र हैं, समर्पण पूरा है, तप में कमी नहीं, आचार विचारों को परिशुद्ध रखने की, जहां कुलीन रूप में और स्वाभाविक रूप में और प्रयत्न पूर्वक जिस तरह का परिष्कार है वो संभव किया जाए, और साथ साथ अपने खान पान व्यवहार को सुधारा जाए. यदि हम ऐसा करते हैं, तब करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ईश्वर का प्रणिधान करें, तो संभवतः हम एक ही जन्म में योग के लक्ष्य को पा सकते हैं. सो प्लीज डू, बिकॉज दिस week is devoted on only Vedic techniques of meditation. So we are learning about deep yoga. Now please do Bhramari with Shanmukhi Mudra, Shankh Bhramari. So put your first finger on eyes gently. Don't push your eyes. So second on nose, third on upper lip, fourth on chin, and thumbs are for closing your ears. Put on their holes. Inhale deeply. Exhale with humming sound like black bee. Please focus on breathing. Please don't open your eyes. Take long and deep breathing. Focus inside. And feel
changes in your body, in your breathing, in your mind. Yesterday, we were learning about pranayam with mantra, about pap and ahankar, agmarshan mantras, and for pratyahar, mansa parikrama mantra. There was mentioned Agni, Aditya, Indra, Pitar, Varun, Anna, Som, Asani, Vishnu, Virudha, Brihaspati, and Varsha. So these are more natural divine things. These are mentioned in Vedas. हम एक दूसरे से द्वेष न करें, कोई द्वेष की ग्रंथि बांधे तो उस पर स्वयं ध्यान न दें, जितना संभव हो उसकी उपेक्षा करें और कोई द्वेष ना करे, ऐसा प्रयत्न करें। मन में संताप बाहर के व्यवहार से आता है और बाहर के व्यवहार से स्वयं को मुक्त करने के लिए, इंद्रियों पर जय पाने के लिए, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने के लिए प्राण का अवलंबन करें। प्राण निर्विषय है। हम अपनी आंखों के माध्यम से पाप का ग्रहण कर सकते हैं, अपने श्रोत्र कानों से पाप कमा सकते हैं, अपनी जिह्वा से, रसना से, इनसे हम पाप कर सकते हैं। हम अपने स्पर्श इंद्रिय से भी पाप के पंकज में फंस सकते हैं। आंखें देखकर पाप और पुण्य का कार्य करती है। अच्छा देखने पर, सहयोग की भाव से देखने पर, करुणा और प्रसन्नता के भाव से देखने पर, मैत्री और दूसरे की उन्नति हो जाए, इस भाव से देखने पर, निरभिमानिता के भाव से देखने पर, सौम्यता से देखने पर, प्रेम और उदारता की दृष्टि से जहां हम अपने चित्त में पुण्य का संचय कर सकते हैं, वही इन नेत्रों से हम दूसरों पर क्रोध, निर्दयता के भाव और अनेकों प्रकार के दोष युक्त प्रदर्शन कर सकते हैं। तो नेत्रों से पाप का आना अथवा पुण्य का आना संभव है, क्योंकि नेत्र, ये चक्षु रूपात्मक जगत को देखने के लिए बने हुए गोलक हैं। इसी प्रकार श्रोत्रों के लिए, कानों के लिए हम अच्छा सुनकर, मंत्रों को सुनकर, कीर्तन सुनकर, भक्ति के, परोपकार के, लोगों की सहायता के लिए निमित्त और अनेकों विद्याओं को ग्रहण करने के लिए अनवरत
विविध प्रकार के शब्दों को सुन सकते हैं, ताकि हम संसार का कल्याण कर सकें, सबके सुख की कामना के विचारों को समझ सकें। और इसके विपरीत भी हम दोषयुक्त शब्दों को, अभद्र शब्दों को सुनकर अपने चित्त को मैला कर सकते हैं। इसी प्रकार त्वचा से जहां कोमल स्पर्श है, सो स्वयं के लिए, किसी को उठाने के लिए, किसी को सहारा देने के लिए, परोपकार के लिए, दान के लिए इनका उपयोग हो तो पुण्य, और यदि वासनागत दृष्टि से स्पर्श होगा तो अपुण्य और पाप का कारण बनता है। तो त्वचा के माध्यम से विषयों में फंसना संभव है। जिह्वा से बहुत पाप होते हैं। कटु शब्द बोलना, किसी की बुराई करना, निंदा करना, क्रोध में वाक्य बोलना, बहुत पाप, अधिकांश पाप नेत्र और जिह्वा से होते हैं। सो जिह्वा पर नियंत्रण, जिह्वा के द्वारा मीठे बोल, परोपकार के भाव, सांत्वना के भाव, सहानुभूति के शब्द, प्रेम के शब्द बोलकर, मंत्र बोलकर, स्वाहा बोलकर इसके पुण्यों को, अर्थात मनुष्य इसके माध्यम से अपने पुण्य बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है। सो पाप युक्त वाणी और पुण्य की अनुगामिनी वाणी दोनों की विवेचना करें। तात्पर्य यह हुआ, जो इंद्रियां हैं उनके अपने अपने विषय हैं और वो उन विषयों में जाकर फंस जाती है। पाप और पुण्य दो में से कुछ भी करेंगे, लेकिन प्राण, प्राण का कोई विषय नहीं है। यदि हम रूप में ध्यान देंगे तो हमारा ध्यान बाहर की ओर जाएगा। स्पर्श करेंगे तब भी आत्मा बहिर्मुखी होती है, देखकर आत्मा बहिर्मुखी होती है, सुनकर आत्मा बहिर्मुखी होती है, स्पर्श कर आत्मा उसी प्रकार बहिर्मुखी, बोलकर भी। लेकिन ज्यों ही अपने चित्त को, अपने मन को प्राणों पर लगाएंगे, प्राण का कोई विषय नहीं है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इनमें से कोई भी विषय प्राण का नहीं है। इसलिए मित्रों, प्राणायाम करो, प्राणों पर ध्यान दो। प्राणों पर ध्यान देने से हम पापों से बचते हैं, दोषों से बचते हैं, कर्मास से बचते हैं, इंद्रियां नियंत्रित होकर ठहर जाती हैं। तो दूसरा चरण प्राणायाम का विचार पूर्वक हो। विचार पूर्वक प्राणायाम करने पर, प्राणायाम के सधने पर स्वतः ही प्रत्याहार होने लगता है। प्रत्याहार का आधार प्राण का अवलंबन है। प्राणों के अवलंबन के लिए श्वेता सूत्रोपनिषद में लिखा, स्वदेहे अरणिम कृत्वा प्रणवचोत्तरारणिम, अपने शरीर को एक अरणी बनाओ, एक मथनी करो इसे, और दूसरी अरणी प्रणव अर्थात ओम के जप को बनाओ। दोनों में घर्षण, दोनों का मंथन होने दो। इससे जो उत्पन्न होगा वो ऐसा होगा जैसे दूध में घी छिपा रहता है किंतु दिखाई नहीं देता।
दही जमाने पर, भिगोने पर उसमें घी आ जाता है। इसी तरह दूध में यदि शक्कर घोल दी जाए तो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी विद्यमानता चख कर अनुभव की जाती। जिस तरह दूध में घृत दिखाई नहीं देता, भिगोना पड़ता है, वैसे ही प्रणव के जप से, ओम के जप से, तज्जपस तदर्थ भावनम, ओम का जप अर्थ सहित जप, with meaning, chanting of Om is good for concentration, good for meditation. तो जब हम ओम का ध्यान करेंगे अर्थ सहित, तब निरंतर प्राण सिद्ध होगा, प्रत्याहार सिद्ध होगा। बाहर के भटकाव से बचकर प्राण पर अपने आप को जोड़ें। सो अन्नमय कोश से प्राणमय कोश की ओर अंतर्मुखी है। प्राण का के उपरांत मन स्वतः ही नियंत्रित होने लगता है, और जब मन का संयम होने लगता है, मन नियंत्रित होने लगता है, तब अपने अंतःकरण में, हृदय में उस परम शक्ति का अनुभव करें, उपस्थान करें, उसे निकट से अनुभव करें, निकट में स्थान दें, हृदय में उसे अनुभव करें, और तब कह उठें, अग्न आया ही बीतये, गृणानो भव्यदातये, निहोता सत्सि बर्हिष। अपने हृदय के इन कुशा के आसनों पर बिठाएं। बैठा तो पहले से ही था, लेकिन अपने चित्त को अंतर्मुखी कर उससे जोड़े, और उपस्थान में ओम उद्वयं तमसस्करी स्वः पश्यन्त उत्तरम, देवं देवत्रा सूर्यं गगन ज्योतिरुत्तम, उदित्यं जात वेदसं देवं वहन्ति केतवः, दृशे विश्वाय सूर्यं, चित्रं देवानामुदगादनीकं, चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्निः, आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षं, सूर्यात्मा जगतस्तु सस्य स्वाहा। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, पश्येम सरदः शतं, जीवेम सरदः शतं, शृणुयाम सरदः शतं, प्रब्रवाम सरदः शतं, दीर्घास्याम सरदः शतं, भूयश्च सरदः शतं। जब उपस्थान होगा तो उसके उपरांत देवताओं के तुल्य अपनी बुद्धि को, देवताओं की उन्नति के समान अपनी स्वयं की उन्नति को जोड़ने के लिए संसार के अन्य पदार्थों से, ब्रह्मांड के अन्य पदार्थों से एकात्मता स्थापित करें। हम आश्चर्यचकित होंगे कि सूर्य कैसे चमक रहा है, चंद्रमा अपनी छटा किस तरह बिखेरता है, प्रकृति के एक एक कण में उसकी शक्ति का आभास होगा, और तब हम कह उठेंगे उसकी शक्ति को जानकर कि हे ईश्वर, हम इसी प्रकार आपको अपने हृदय में, अपने आत्मा में देखते रहें, 100 वर्ष तक देखते रहें। 100 वर्ष तक आपके ही कीर्तन, आपके ही स्तुति के, प्रार्थना के, उपासना के निमित्त विनियुक्त मंत्रों को सुनते, गाते, बोलते रहें। ऐसा करने पर यह निश्चित है कि हमें अधीनता ही प्राप्त होगी, हम किसी के अधीन नहीं होंगे, और ये सामर्थ्य हमें 100 से भी अधिक वर्षों तक मिले। ऐसा भाव, ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य हे प्रभु हमें प्रदान करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राणधार, दुखनाशक, आनंद स्वरूप, सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य, पापों कर्मों के मूल कारण को नष्ट करने वाले आपके तेज स्वरूप का
मैं अपने अंतःकरण में ध्यान करता हूँ। आपके वर्णीय स्वरूप को मैं अपने अंतःकरण में ध्याता हूँ। आप हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करें, कुटिलतम पाप और कर्मों से दूर हटाएं और हमारी वाणी आपकी कृपा की सदैव अभिलाषी रहे। उस दृष्टि से हम प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपाणेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन। हे ईश्वर हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान कराओ, हे दयानिधान। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम। सुबह ईश्वर कल्याणकारी है, मंगलकारी है, शांत से भी शांत है, समस्त संसार का उपकार करता है। इस भावना से निरंतर योग की एक एक सीढ़ी की तरफ बढ़े। शरीर के स्तर पर आसनों का अभ्यास, प्राणों को, अपने इम्यून सिस्टम को। सो प्लीज डू ऑल प्रैक्टिसेस फॉर फिजिकल आसनास। सो आसनेन भवेत् दृढ़म्, आसनों से दृढ़ता, आसनों से सुदृढ़ता, मजबूती आती, स्ट्रांगनेस। We gain more strongness with asanas. सो हम आसन करें, फिजिकल के लिए करें, प्राणों के लिए प्राणायाम करें, मन की शांति के लिए फॉर पीस प्लीज डू मेडिटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर सोल ऑफ स्पिरिट प्लीज डू मेडिटेशन, ध्यान समाधि की ओर बढ़ने के लिए इसी प्रकार अपने हृदय को अंतर्मुखी करें, उस परम शक्ति से, सर्वव्यापक विभु परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न करें और उसे इस प्रकार उद्गीत के साथ, प्रणव के साथ पुकारें और शांति का वरदान मांगे। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। हमने कुछ वैदिक टेक्निक्स के साथ ध्यान, प्राणायाम और मेडिटेशन करने का प्रयत्न किया है। भारत में और बाहर भी अनेकों योग साधक लगातार अपनी आत्मा के उत्थान के लिए प्रयत्नरत हैं और सबको होना चाहिए। एम्बेसी ऑफ इंडिया is organizing International Day of Yoga, 6th International Day of Yoga on 20th June, Saturday. So welcome all of you
and we are organizing more curtain raisers programs for community. So please connect with us and share and comment, and please take some your suggestions. Namaste, धन्यवाद.